شالوم مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم جس کلام میں سے سیکھنے والے ہیں روح القدس کی مدد سے، سچائی کے روح سے، مسیح یسوع کے فضل سے اور مکاشفہ کی روح سے۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے استاد کہلائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے جن کو آپ نے شاگرد بنانا ہے اس کے شاگرد بنانے والا استاد کہلائے، یا تم ان کے گرو بنو یا کہلاؤ، کیونکہ جس نے یہ کہا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اس نے یہ بھی کہا ہے مگر تم ربی نہ کہلاؤ۔ ربی یعنی استاد، گرو، ٹیچر، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہے جو آسمانی ہے۔ اور نہ تم ہادی کہلاؤ، ہدیے لانے والے، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح۔ ہم تو آپس میں بھائی ہیں، تو پھر قوموں کو شاگرد کس کے بنانا ہے؟ لیکن مددگار یعنی روح القدس، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، جسے باپ یسوع مسیح کے نام سے بھیجتا ہے، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، جو کچھ یشوع نے کہا ہے، وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تو پھر قوموں کو شاگرد کس کے بنانا ہے؟ اپنے نہیں، روح القدس کے، جسے باپ یسوع کے نام سے بھیجے گا۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں۔ پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ وہی ہمیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ یسوع نے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گی، لیکن جو کچھ سنے گی وہی کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گی، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گی، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد کر لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی متاحت میں ہماری نگاہ بانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب راست باز ٹھہریں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متاحت نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ مسیح کو پہن لیا مطلب بیٹے کو پہن لیا، مسیح کو پہن لیا، یعنی چھوٹے نے جس نے حصہ مانگا اس کی گھر واپسی مسیح کو پہن لیا۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا کہ اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے۔
उसने अपना माल मत्ता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने ही मजदूरों को रोटी इफरत से मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और बूसे लिए। बेटे ने उससे कहा कि ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा जामा जल्द निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बाह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इज़राइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स को अपने हमवतन और अपने भाई को ये तालीम देनी ना पड़ेगी, तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेगी, इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना जमीन पर की चीजों के। और जो भाई किसी को अपना रब्बी यानी उस्ताद मानते हैं जमीन पर या बनाए हुए हैं, वो ही हैं, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद कर लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जी होंगे। और जो कोई किसी का उस्ताद या रब्बी जमीन पर बना हुआ है या अपने आप को बनाता है, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनका उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों के दिखाने को करते हैं, क्योंकि अपने तावीज बड़े बनाते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं और ज़ियाफ़तों में
सदर नशीने और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है यानी मसीह, लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाइज करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है कि जिना ना करना, आप खुद क्यों जिना करता है? तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सब कौमों को शागिर्द तो बनाना है मगर रूहुल कुद्स के, अपने नहीं। खुद ही उस्ताद हो जाएं क्योंकि हम आपस में भाई हैं। उस्ताद एक ही है यानी मसीह यस्सु। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को ताकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम